وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جیلانی أدرك عبدك جیلانی۔ جامعۃ الرضا کے اسٹیج پر مکہ شریف کے خاص مکی عالم حضرت سید ہاشم علوی اسی خانوادے کے تشریف لائے، اور جب اسٹیج پر وہ آئے تو انہوں نے عربی میں اپنی گفتگو شروع کی۔ گفتگو جو انہوں نے کی ایسی پیاری گفتگو کی کہ لگتا تھا کہ یہ بولتے رہیں اور ہم ان کے خطاب سے محظوظ ہوتے رہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں عرس اعلیٰ حضرت میں آیا ہوں اور مجھے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے دو واقعہ یاد آتا ہے، میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ علماء نے کہا حضور ارشاد ہو۔ اب وہ ہاشم علوی مالکی جو مکہ شریف میں آج بھی باحیات ہیں، اللہ توفیق دے تو ان سے جا کر کے ملاقات کیجئے گا اور ان کے عقائد کو جانیے گا، اور ہندوستان کے نزدیوں کے جھوٹ پر آپ لعنت بھیجیے گا۔ حضرت سید ہاشم علوی مالکی اپنے خطاب میں فرماتے ہیں کہ میں مکہ شریف سے ایک مرتبہ افریقہ کے دورے پر گیا، ایک شہر میں میں پہنچا، جمعہ کا دن تھا۔ وہاں کے لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ سعودی عربیہ سے آئے ہیں، یہ مکے سے آئے ہیں، تو لوگوں نے کہا ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ خود انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے، کسی دوسرے کی زبانی واقعہ میں نے نہیں سنا ہے، انٹرنیٹ پر آج بھی یہ واقعہ موجود ہوگا، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ وہ سید ہاشم مالکی علوی دامہ ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ جب میں گیا افریقہ، ایک شہر میں پہنچا، جمعہ کا دن تھا، لوگوں نے کہا ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں پڑھیں گے؟ تو کہا آپ مکے سے آئے ہیں، پتہ نہیں کس عقیدے کے ماننے والے ہیں، کس عقیدے کے آپ ہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا آپ میرے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں، میرے عقیدے کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ خود سید ہاشم علوی مالکی دامہ ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھ سے کہا ہم اپنے حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، آپ کیسا عقیدہ رکھتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے۔ سید ہاشم علوی مالکی دامہ ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ اس وقت جب اس نے مجھ سے یہ سوال کیا، مجھے ہندوستان کے امام احمد رضا یاد آ گئے۔ میں نے امام احمد رضا کی طرف رجوع کیا ہے، جو ان کی کتابوں کا میں نے مطالعہ کر کے اپنے ذہن میں کچھ مواد محفوظ رکھا تھا، اس کی روشنی میں میں نے ان کو جواب دیا ہے، اور میں نے امام احمد رضا کے تصور میں ڈوب کر کے ہندوستان کا نقشہ کھینچ لیا اپنے دل و دماغ میں، اور میں نے کہا اے احمد رضا، تو نے ہندوستان کے اندر جس عقیدے حاضر و ناظر کو کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت کیا تھا، وہ صرف تیرا ہی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ وہی عقیدہ عرب و عجم کے مسلمانوں کا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد رضا کی کتابوں کے حوالے سے جو حاضر و ناظر کے تعلق سے کچھ سنا سمجھا تھا، اس کو میں نے ان کے سامنے پیش کیا، ان کے سامنے میں نے رکھا، اور میں نے کہا الحمدللہ میں بھی رسول پاک کو حاضر و ناظر مانتا ہوں جیسے آپ لوگ مانتے ہیں۔ اب کہا کہ ہمیں آپ سے ایک اور سوال کرنا ہے۔ یہ افریقہ کے لوگ ہیں جن کو آپ لوگ بہت گرا ہوا سمجھتے ہیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تھرڈ کلاس کے لوگ ہیں، جن کے ہاں کوئی تہذیب و تمدن نہیں ہے، آپ ان کے بارے میں یہ سنیے، اور آپ لوگ کہتے ہیں ارے کسی کے پیچھے نماز پڑھو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، سب کے پیچھے پڑھنی چاہیے۔ اور آج کل تو ایک گرو گھنٹال جس کو بہت سارے بے وقوف شیخ الاسلام کہتے ہیں، مجدد کہتے ہیں، پاکستان کے اندر اپنی مجددیت کے بلبوتے لڑکیوں کو لا کر کے روڈ پر نچواتا ہے، اس کو شیخ الاسلام لوگ کہتے ہیں۔ تب ہے ایسے لوگوں کے، ایسے شیخ الاسلام پر، ایسی مجددیت پر لعنت ہو۔ کیا مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادیاں، ان کے ماننے والی خواتین اسی لیے بنی تھی کہ وہ کسی کے سیاسی احتجاج میں آ کر کے چوراہے پر ناچتی ہوئی نظر آئے؟ لیکن بہت سارے بے وقوف ہمارے ہندوستان کے بھی ایسے ہیں کہ جو کہتے نہیں وہ تو بہت شاندار تقریر کرتا ہے، بہت بہترین اس کا علم ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں نہ جانا۔ حضرت زاہد کے تسبیح و مصلی پر بڑے چلتے ہوئے حضرت ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ علامہ سید ہاشم علوی مالکی دامہ ظلہ العالی نے کہا بتائیے آپ دوسرا سوال کیا کرنا چاہتے ہیں؟ افریقہ والوں نے دوسرا سوال کیا، سنیے آپ لوگ۔ آج کل کچھ مولوی کہتے ہیں کسی کے پیچھے نماز پڑھو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ ایسا نظریہ رکھنے والوں سے
अपने ईमान की हिफाजत कीजिएगा, चाहे वो दाढ़ी में आए, चाहे टोपी में आए, चाहे पैंट शर्ट में आए, चाहे जुब्बा साफा में आए, किसी भी शक्ल में आए, मगर याद रखिए आप बहुत ही एहतियात से अपनी नमाजों को अदा कीजिएगा। अफ्रीका के वो बद्दू हमारी नज़र में अहमियत वाले हैं जिन्होंने मक्का शरीफ के उस आलिम के पीछे नमाज पढ़ने से पहले सोचा कि हम तहकीक कर लें, हम पूछ लें। मैं 2-3 साल पहले मलावी अफ्रीका का एक शहर है, वहां गया। अफ्रीका के जंगल में रहने वाले मुसलमान, मैंने उनके बारे में वहां के उलमा से जब पूछा कि ये लोग किस अकीदे के हैं, तो मुझको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 95% वही लोग हैं जिसे हिंदुस्तान में सुन्नी बरेलवी कहा जाता है। ये मलावी की मैं बात आपसे कर रहा हूँ। वहाँ का एक शहर है जिसका नाम है लिलांगवे। 1 हफ्ते में वहाँ पर मुकीम रहा। फिर वहाँ से मैं गया ब्रिंटाइल, वहाँ भी मैंने यही सवाल किया। तो वहाँ के उलमा ने मुझको एक बहुत ही अहम बात बताई। उन्होंने मुझसे फरमाया कि जब उलमा हिंदुस्तान से और दुनिया के मुल्कों से यहाँ पर तबलीग इस्लाम करने के लिए आए, जब उन्होंने इस्लाम की यहाँ तबलीग फरमाई, आज तो हम लोग गर्मी के मौसम में ठंडे मुल्क में जाते हैं और ठंडक के मौसम में गर्म मुल्क में जाते हैं और उसे हम नाम देते हैं कि हम तबलीग करके आ रहे हैं। हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं तबलीग की है तो आला हजरत के एक शागिर्द और उनके खलीफा मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी ने की है। मैं समझता हूँ कि जितने उलमा मिल करके आज ठंडे मुल्कों में गर्म मौसम में और गर्म मुल्कों में ठंडक के मौसम में जाते हैं, सब मिल करके भी तबलीग का वो काम इस वक्त नहीं अंजाम दे पा रहे हैं जो आला हजरत के एक चहेते खलीफा ने अपनी जिंदगी में तनहा करके दिखा दिया था। हुजूर मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी, तारीख में आता है तकरीबन 30 ज़बानों में वो खिताब फरमाते थे, 30 ज़बानों में तकरीर करते थे। और यही बम्बई की सरजमीन है, मुस्तफ़ा बाजार का मोहल्ला है। यहीं से जब हुजूर मुबल्लिग इस्लाम तक़सीम हिंदुस्तान से पहले तशरीफ लाते थे, यहाँ शहर में खिताब फरमाते थे और यहाँ से जब वो समंदरी सफ़र करते थे तो तन्हा जाते थे। मगर तारीख ये बताती है कि वो पूरा जोग्राफिया सामने रखते और उसकी रोशनी में वो मुतय्यन करते कि फला प्लेटफार्म पर, फला बंदरगाह पर, ये समंदर के किनारे इतने दिन ये जहाज रुकेगा। पूरा वो अपना शेड्यूल मुतय्यन करते और उसके बाद में कैप्टन से वो इजाजत लेते कि 1 हफ्ता रुकेगा ये जहाज यहाँ या 4 रोज रुकेगा। फौरन बाहर निकलते, शहर में जाते, उनकी जबान में दावतनामा लिखते और जा करके बड़े बड़े लोगों के सामने वो दावतनामा पेश करते कि आप तशरीफ ले आइए, हम आपको टी पार्टी के लिए दावत दे रहे हैं, आपकी दावत है, हम आए हुए हैं, हमारी कुछ बात भी सुन लीजिएगा, हमने आपकी दावत की है। हाल खुद बुक कराते, वहाँ सारा इंतजाम करते और जब सब वहाँ पे प्रोफेसर, दानिश्वर, उमरा, वज़रा, शहर के लोग इकट्ठा हो जाते, मुबल्लिग इस्लाम अपने साहिराना बयान से लोगों के दिलों की दुनिया बदलते जाते थे। तो तन्हा जाते थे, मगर जब बंदरगाह पर वापस आते तो मुसलमानों का एक काफिला उनके साथ हुआ करता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। उनके एक मुरीद ने मुझसे बताया कि हुजूर मुबल्लिग इस्लाम अफ्रीका के एक मकाम पर गए, इसी बॉम्बे की सरजमीन से बक्स में उन्होंने बहुत सारे कपड़े तैयार कराए, कुर्ता पायजामा, लिबास तैयार कराया, इसलिए कि इससे पहले वो देख करके आ चुके थे कि वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कपड़े पहनने के शौर नहीं है। हुजूर मुबल्लिग इस्लाम जब गए, सामाने सफर साथ में है, लिबास का बक्स खोला गया, बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। हुजूर मुबल्लिग इस्लाम ने पायजामा उनको पहनने के लिए फेंका, क्योंकि नंगे धिड़ंगे आए थे तो पायजामा वो पैर में डालने के बजाय सर पे डाल रहे थे, उनको पायजामा पहनने का शौर नहीं था। बताओ अफ्रीका की इन वादियों में कौन है जिसने जाकर के मुस्तफा जान रहमत की अजमत का परचम बुलंद किया है? कोई एक वहाबी अपनी किताब में लिखता है कि इंसाफ की अदालत का फैसला यह है कि मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी बरेलवी जमात से ताल्लुक रखते थे, मगर जो उन्होंने तबलीग का कारनामा अंजाम दिया है उसकी मिसाल नहीं मिल सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत पूरी दुनिया में था, पूरी दुनिया का उन्होंने दौरा फरमाया था। और पूरी दुनिया का दौरा फरमाने के बाद जब वो मदीने मुनव्वरा पहुंचे,
اور وہاں سے واپس جب گئے میرٹھ تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کی شان میں ایک منقبت لکھ ڈالی، ایک قصیدہ لکھا اور پہنچے بریلی شریف۔ بریلی شریف پہنچنے کے بعد اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ دماغ کیوں خراب ہو جاتا ہے؟ اگر ہمیں یہ محسوس ہو گیا کہ یہ پورا مجمع میرے کنٹرول میں ہے، یہ میرا بڑا چاہنے والا ہے، 2-4-10 ہزار میرے مرید ہیں، 6-7 ہزار میرے شاگرد ہیں، ایک لمبی تعداد میرے ماننے والوں کی ہے، میں الگ اپنی دفلی بجانے لگتا ہوں، اپنی الگ دفلی بجا کر کے میں ایسا سوچتا ہوں کہ یہ میرا اپنا حلقہ ہے، اس حلقے میں دوسرا نہیں آ سکتا ہے، اب میں جو چاہوں گا وہ ان سے کہلواؤں گا۔ چنانچہ بہت سارے مریدوں کا حال یہ ہو گیا ہے، ہمارے حضرت چاہے جائز کہیں نہ جائز، قرآن سے کہیں یا جیسے کہیں، وہ جو کہہ دیں گے ہم اسی کو مانیں گے۔ نتیجہ یہ ہے اختلاف و انتشار کے یہ بادل اور زیادہ گھنگھور گھٹا کی طرح چھائے چلے جا رہے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نہ جانے کتنی خانقاہیں تھیں، نہ جانے کتنے پیر تھے، مگر جب فتویٰ پوچھنا ہوتا تو مارہرا بھی فتوے کے سلسلے میں امام احمد رضا کو اپنا معتمد سمجھتا تھا۔ اللہ اللہ اللہ، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ۔ حضور مبلغ اسلام تشریف لے گئے، افریقہ کی وادیوں میں اسلام پھیلایا۔ اعلیٰ حضرت کے اس خلیفہ نے کیپ ٹاؤن میں ایک جگہ میلاد کسی کے گھر میں پڑھا۔ میں نے ایک مرتبہ 2, 4, 6 یا 10 منٹ کی ان کی ایک تقریر کہیں سے سن لی، واللہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی حلق کے نیچے نہیں بلکہ دل کے اندر اپنی بات کو اتار رہا ہے۔ اور میلاد ختم کرنے کے بعد جب اس نے کیپ ٹاؤن کے اس میلاد خانے میں صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کیا، اپنے والہانہ انداز میں جب اس نے پڑھا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، اے مبلغ اسلام، آپ تو اس زمانے میں الہ آباد یونیورسٹی سے BA کر چکے تھے، 30 زبانوں کے آپ ماہر تھے، 70,000 غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، آپ نے کیوں نہیں الگ ڈگر بنائی؟ آپ نے کیوں مصطفیٰ جان رحمت کو پڑھا؟ آپ نے کیوں امام احمد رضا کا ذکر کیا؟ تو وہ خود فرمائیں گے، عرب میں جا کے ان آنکھوں نے دیکھا جس کی عظمت کو عجم کے واسطے لا ریب وہ قبلہ نما تم ہو۔ خود وہ فرماتے ہیں تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، تم ہی پھیلا رہے ہو۔ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ مبلغ اسلام کہہ رہا۔ آج کا وہ مبلغ نہیں جس کو صحیح ڈھنگ سے ابھی قرآن کی چند آیت کا ترجمہ بھی نہ معلوم ہو۔ فقہ کی کتابیں اگر سامنے رکھ دی جائیں تو پسینہ نیچے کے بجائے اوپر چلا جائے۔ ایسوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اس مبلغ اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے دانشور جس کے سامنے گنگے نظر آتے تھے۔ آئرلینڈ کا ایک بہت ہی مشہور ڈرامہ نویس ہے جس کا نام ہے جارج برنارڈ شاہ، اسی کیپ ٹاؤن شہر میں غالباً جب اس کی ملاقات علامہ عبدالعلی میرٹھی سے ہوئی تو علامہ میرٹھی سے اس نے گفتگو شروع کی کہ اسلام سچا ہے یا نہیں۔ مبلغ اسلام علی رحمت و رضوان نے جب اسلام کی صداقت کو ان کے سامنے رکھا، اسلام کی سچائی کو ان کے سامنے رکھا اس کے سامنے، تو جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ اگر آپ جیسے خطیب اسلام کی تبلیغ کرنے والے رہ گئے تو میرا دعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں آنے والی قوم کا مذہب مذہب اسلام ہوگا۔ وہ مبلغ اسلام ہے، وہ کسی جاہل کا نام نہیں ہے، لیکن جب پوری دنیا کا اس نے دورہ کیا اور دنیا میں جا کر کے جب اس نے دیکھا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچا، اے احمد رضا تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا۔ اللہ 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 اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو آپ کدھر جا رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت سے کٹ کر کے کدھر جاؤ گے؟ اللہ اللہ اللہ۔ اسی بمبئی میں ایک صاحب ہیں، بیچارے عالم دین نہیں ہیں، مگر اگر ایک مولانا صاحب کے بارے میں انہوں نے سنا کہ یہ بھی اعلیٰ حضرت پر کچھ تنقید کرتے ہیں، ان کے متعلقین میں سے تھے، کہا ہی بتاؤ مولانا صاحب اعلیٰ حضرت کے نائے منی ہو، بریلی نائے جائی ہو تو دوسرا راستہ کون ہے؟ دیوبند جائے گا، تو ادھر نائے جائی ہو تو ادھر جائے پڑھی،
تو کا तोहरे लोग के आला हजरत की अदावत इतनी दूर तक पहुंचाई थी इसका उफरे जालिम। ये बढ़ा जोशे तासुब आखिर भीड़ में हाथ से कम वक्त के ईमान गया। न जाने कितने लोग आला हजरत की अदावत में सिर्फ अदावत ही की मंजिल में न रह गए, गुमराही की मंजिल में चले गए, इसलिए कि आला हजरत से जो टकराता है वो सिर्फ आला हजरत से नहीं टकराता, महबूबे परवरदिगार से टकराता है, महबूबे मुस्तफा जाने रहमत से टकराता है। आला हजरत ये हमारे और आपके सिर्फ महबूब नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत के महबूब है। मुझे एक वाकया याद आ गया, थोड़ा सा वक्त और आपका लूंगा। आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने का ही वाकया है। एक मुंशी जी थे, लताफत हुसैन गालिबन उनका नाम था। वो रहने वाले थे मुरादाबाद के, मगर जाकर वो मुकीम हो गए थे पीलीभीत में। बहुत दिनों के बाद मुरादाबाद से एक साहब पीलीभीत पहुंचे। इत्तेफाक से उनके अंदर गैर मुक़ल्लिदियत के जरासीम आ गए थे, वहाबियत उन पर छाने लगी थी। जब पहुंचे भले मुरादाबाद से पीलीभीत, जब मुलाकात हुई मुंशी लताफत हुसैन साहब ने खैर खैरियत पूछी, और उसके बाद में जिनको नशा सवार था गैर मुक़ल्लिदियत का, उन्होंने कुछ सवाल रखा। मुंशी लताफत हुसैन ने उसका जवाब दिया, और थोड़ी देर के बाद मुंशी लताफत हुसैन साहब ने भी एक सवाल कर लिया, लेकिन वो जिन्हें गैर मुक़ल्लिदियत का नशा सवार था वो जवाब नहीं दे पाए, और जवाब उनसे न बन पड़ा तो फौरन उन्होंने आला हजरत को बुरा कहना शुरू कर दिया। मुंशी लताफत हुसैन कहते हैं, भैया गुफ्तगू तो हमारी और आपकी हो रही है, बरेली के आला हजरत ने क्या बिगाड़ा है? और अगर आपको उनसे कोई रंजिश है तो अभी वो बरेली में जिंदा हैं, जाइए उनसे मिल लीजिए, आपका मसला हल हो जाएगा। गैर मुक़ल्लिद साहब ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे बरेली जाने की जरूरत नहीं है, मैं क्यों बरेली जाऊं, मुझे क्या पड़ी है कि मैं बरेली जाऊं। मुंशी लताफत हुसैन ने फरमाया, ठीक है ये आपकी मर्जी है, मगर मेरी समझ में जो बात आई वो मैंने आपसे कह दी, आप जाए ना जाएं ये आपकी मर्जी है। अब गैर मुक़ल्लिद साहब का वाक़या आगे सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैं रात में जब सोया तो सोने में मुझे एक ख्वाब नजर आया। ख्वाब क्या था? वो कहते हैं कि एक नदी है, एक दरिया है, और उसे मुझे पार करना है, मगर वहां कोई कश्ती नहीं है जिसके जरिया मैं उस समंदर को पार कर सकूं। थोड़ी देर में मैंने देखा कि एक कश्ती आ रही है, और उस कश्ती में दो मौलाना बैठे हैं। एक ने दूसरे से कहा, वो जो बाहर खड़ा है उसको भी अंदर बुला लिया जाए ताकि वो भी गुजर हो जाए, उसका भी गुजर हो जाए। मगर दूसरे ने जवाब दिया, नहीं नहीं उसको मत बुलाना, वो नापाक है, उसको बुलाना नहीं कश्ती के अंदर। बात आई गई, खत्म हो गई। अब आगे वो गैर मुक़ल्लिद साहब कहते हैं कि मैं जब नींद से बेदार हुआ तो मैंने ये सोचा, या अल्लाह मैंने ऐसा ख्वाब क्यों देखा, मैं तो मुअहिद हूँ, मैं तो तौहीद का अलमबरदार हूँ, मैं तो ऐसा पक्का मुअहिद हूँ कि किसी से मांगना भी मैं शिर्क समझता हूँ, आखिर मुझको नजिस और नापाक क्यों कहा गया? मैं तो तौहीद का अलमबरदार हूँ, जो मुअहिद होता है वो नजिस नहीं होता है। कुरान में मुशरिक को नजिस कहा गया है, आखिर उस मौलाना ने मुझको नजिस और नापाक क्यों कहा? इतनी गई बात आई, खत्म हो गई। फिर वो कहते हैं 2-3 दिन गुजरे, फिर मैंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा? एक शानदार गेट है और बेहतरीन दरवाजा मुझे नजर आया, उसके सामने एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर है, एक भीड़ लगी हुई है। मैंने भीड़ में जाकर के पूछा कि आखिर ये भीड़ क्यों लगी हुई है, आखिर यहाँ मामला क्या है? एक साहब ने मुझको जवाब दिया कि अंदर दरबारे रिसालत लगा हुआ है और लोग देखने की और ज़ियारत करने की गरज से भीड़ लगाए हुए हैं। कहा कैसे जाया जाएगा? कहा गेट के अंदर से। अब ये भीड़ को चीरते हुए गेट के पास पहुंचे, देखा तो एक गेटमैन बैठे हुए हैं। उनसे कहा कि मुझको अंदर जाने दो। कहा चिट्ठी लाओ। कहा चिट्ठी तो मेरे पास नहीं है। कहा फिर अंदर जाने की इजाजत भी नहीं है। कहा फिर क्या होगा? कहा बगैर चिट्ठी अंदर नहीं जा सकते हैं। कहा जाइए जरा इजाजत लेकर के आ जाइए, हो सकता है कि बगैर चिट्ठी मुझे जाने की इजाजत मिल जाए। कहा ठीक है आप कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ। अब वो अंदर गए। थोड़ी देर के बाद जब बाहर आए तो कहा बगैर चिट्ठी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। फिर इन्होंने दूसरा सवाल किया, तबीयत चाहती है दीदार की, चिट्ठी कहाँ मिलेगी? जरा ये भी पूछ करके आ जाइए ताकि वो चिट्ठी मैं लेकर के फिर दरबारे रिसालत में हाजिरी दे दूं। अब जो अंदर गए और अंदर से वो गेटमैन बाहर आए तो वो फरमाते हैं कि ये चिट्ठी बरेली अहमद रजा के यहाँ मिलेगी। अल्लाह अकबर, ख्वाब की ये बात थी। अब उसके बाद में क्या हुआ? जब वो नींद से बेदार हुए, दाव देखा ना ताव, सुबह किसी तरह से उन्होंने गुजारी और फिर
रात गुजार करके जब वो सुबह में पहुंचे तो फौरन जब गए रेलवे स्टेशन। अब मुंशी जी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि बरेली जाओ, फौरन वो स्टेशन पहुंचे, पीलीभीत टिकट कटाया, ट्रेन में बैठे और बरेली शरीफ वो पहुंच गए। 10 बजे के करीब जब वो बरेली मोहल्ला सौदागरान पहुंचे तो देखा वहां उलमा का जम्मे गफीर है। दारो कतार वहां पहुंच करके आला हजरत के कदमों में गिर करके ये रोने लगे, खूब ठाड़े मार मार करके रो रहे हैं। और जब रो दो करके इनके दिन को कुछ सुकून मिल गया, अब उठ करके बैठे। आला हजरत फरमाते हैं आपको क्या परेशानी है, क्या मुसीबत आपके सर आ गई है, आप कहां से आए हैं, आपका माजरा क्या है, कौन सी मुसीबत आपके सर पर आई है, क्या आप इस तरह से रो रहे हैं। अब उन्होंने अपना पूरा माजरा सुना दिया, हुजूर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। आला हजरत फरमाते हैं आइए करीब आइए। अब वो जब करीब हुए तो आला हजरत ने फरमाया गैर मुकल्लदियत से पहले तौबा कीजिए। वो अर्ज करते हैं हुजूर इसीलिए तो मैं हाजिर हुआ हूँ, यही वजह है कि मैं आपकी बारगाह में आया हूँ। फौरन उन्होंने वहाबियत से तौबा की, गैर मुकल्लदियत से तौबा की, सुन्नी सहीउल अकीदा बने। आला हजरत ने फरमाया हाथ लाइए। उन्होंने आला हजरत के हाथ में अपना हाथ दिया, आला हजरत ने उनको मुरीद किया और उसके बाद में फिर बैठाया और फिर खादिम से फरमाया जाओ शजरा लेकर के आओ। अब वो शजरा जब लेकर के आए आला हजरत ने अपने हाथ में शजरा लिया और लेने के बाद उनसे फरमाया मियां लो यही वो चिट्ठी है जिसके जरिया दरबारे रिसालत में पहुंचा जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। इमाम अहमद रजा मकबूले बारगाहे मुस्तफ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसकी भी दलील रखता हूँ कि वो मकबूले बारगाहे खुदा हैं। से पाक है मुस्तफ़ा जान रहमत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, बुखारी शरीफ की हदीस है। आजकल बहुत सारे लोगों के ऊपर बुखारी का नशा सवार रहता है। हर सुन्नी से कहते हैं दिखाओ बुखारी शरीफ में कहाँ लिखा है कि जुलूस मनाया जाए। हर कहने वाला कहता है लाओ जरा बुखारी शरीफ में दिखाओ कहाँ मीलाद लिखा है कि मीलाद किया जाए। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। बेइश्क़े मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। बात बहुत दूर चली जा रही है, वरना मैं आपको अभी बहुत सारे दलाइल पेश करता कि वो कैसे बारगाहे मुस्तफ़ा और बारगाहे खुदावंदी में रब कायनात की बारगाह में उनको कितना अजीम रुतबा हासिल था। बुखारी शरीफ की हदीस है कि बहुत से ऐसे लोग कि जिनको आम लोग बहुत मामूली समझेंगे, लेकिन उनकी शान ये होती है कि वो अगर अल्लाह की कसम खा करके अपनी जबान से कुछ कह दे तो रब कदीर उसे जरूर पूरी कर फरमा देता है, उनकी बात को टालता नहीं है। ऐसे अल्लाह वाले हैं, ये बुखारी शरीफ की हदीस में है। आइए आला हजरत की बारगाह में। आला हजरत के दोस्तों में से एक साहब थे जो इल्म हयत जानते थे, इल्म नजूम के माहिर थे। आसमान में सितारों की चालों को देख करके वो बहुत कुछ बता दिया करते थे। कभी कभी आला हजरत के पास आते थे। जो बेतकल्लुफ दोस्त होते हैं उनको जो कुर्ब हासिल होता है, उनके लिए जो गुफ्तगू का अंदाज होता है वो अलग होता है। हकीम साहब आए, आला हजरत की बारगाह में बैठ गए। आला हजरत ने उनसे पूछा हकीम जी ये तो बताइए आपका जायचा क्या कह रहा है, इस महीने में बारिश होगी कि नहीं होगी, जरा ये तो बताइए। उन्होंने फौरन हिसाब लगाया, सितारों की चालों को देखा और कहा हजरत इस महीने में तो बारिश नहीं दिख रही है, जायचा ये बता रहा है कि बारिश नहीं होगी इस महीने में। आला हजरत ने उनका बनाया हुआ जायचा लिया, हिसाब लगाया, कहा हकीम जी आपने हिसाब तो सही लिखा है, बिल्कुल इस हिसाब के मुताबिक बारिश तो नहीं होगी, हिसाब यही बता रहा है, सितारों की चाल ये बता रही है कि इस महीने में बारिश नहीं होगी। अब उसके बाद में जब हकीम जी अपनी बात पर मुतमईन हो गए कि आला हजरत ने भी मेरी तायद फरमा दी, इसका मतलब है कि वाकई में कुछ इल्म नजूम जानता हूँ, आला हजरत ने तायद कर दी। अब वो दिल में मसरूर हो गए। अब आला हजरत ने फरमाया हकीम जी देखिए जरा घड़ी में कै बज रहे हैं। उन्होंने कहा हुजूर ये गालिबन 11:15 या 12:15 बज रहे थे, जो भी टाइम हो। आला हजरत ने फरमाया कै बज रहे हैं? उन्होंने कहा हुजूर 12:15 बज रहे हैं या 11:45, ऐसे ही कुछ टाइम था या 12:45। तो आला हजरत फरमाते हैं अच्छा ये इतना टाइम हो रहा? कहा हाँ। आला हजरत उठे, दीवार घड़ी लगी थी, सुई को उठाया और 12 पे कर दिया। फरमाया आप कै बज रहे हैं? कहा हुजूर अब तो 12 बज गए। कहा कैसे 12 बज गए, अभी तो आप कह रहे थे कि 12:15 बज रहे हैं, इतनी जल्दी 12 कैसे बज गए? उन्होंने कहा हुजूर पहले अपने सिस्टम के मुताबिक वो घड़ी चल रही थी इसलिए 12:15 बज रहे थे, आपने उस घड़ी की सुई को इकट्ठा करके दोनों एक जगह कर दिया है, तो अब आपके कहने से आपके हाथ लगाने से वो 12 बज गए, वरना
अपने सिस्टम से अगर चलती है घड़ी तो अभी फौरन 12 नहीं बजते। आला हजरत फरमाते हैं हकीम जी ये बताइए, ये आपने जो हिसाब लगाया ये एक सिस्टम था, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो सितारों की चाल को बदल दे, और जब सितारों की चाल है वो बदल सकता है, तो अगर चाहे तो इस महीने में बारिश हो सकती है। हकीम जी कहते हैं जी हाँ बिल्कुल बारिश हो सकती है। अब आला हजरत फरमाते हैं हकीम जी इस महीने की क्या बात है, अगर अल्लाह चाह ले तो इसी हफ्ते में बारिश हो सकती है। हकीम जी कहते हैं हाँ हजरत अगर अल्लाह चाहे तो इसी हफ्ते में बारिश हो सकती है। आला हजरत फरमाते हैं हकीम जी इस हफ्ते की क्या बात है, अगर रब चाहे तो आज ही बारिश हो सकती है। अब इतना जो कहा हकीम जी कहते हैं हाँ हुजूर अगर अल्लाह चाहे तो आज ही बारिश हो सकती है। कैफियत आला हजरत की बदलती है, रब के तस्वुर सिफात में गर्क होते हैं और अर्ज करते हैं, इरशाद फरमाते हैं हकीम जी आज की क्या बात है, अगर रब चाहे तो अभी बारिश हो सकती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतना कहना था, इधर जबान से निकल रहा है और उधर बाहर बारिश हो रही है। गुफ्ते वो गुफ्ते अल्लाह बुआत गर्च अज हुल्कू में अब्दुल्ला बुआत। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि उनका कहना